سنانے والوں اور آپ غور کریں گے تو آپ جانیں گے کہ اس وقت پیشن گوئیاں کرنے والوں میں نجومی تھے، فعالگیر تھے، ٹی وی چینلز پہ دکھائے جا رہے تھے، یہاں تک کہ طوطے فعال نکال کے بتا رہے تھے کون جیتے گا، کون جیتے گا اور کون جیتے گا۔ اب کلام کے مطابق علم الغیب کا جو علم ہے وہ صرف کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس۔ خدا کو معلوم ہے کب اور کیسے اور کیا ہوگا۔ تو جب وہ طوطا فعال نکالتا اور میں اس کو دیکھتا اور جب وہ چینل والے دکھاتے، مختلف چینل والے دکھاتے، تو ہمارے ملک کا رزلٹ آتا پاکستان جیتے گا، پاکستان جیتے گا، تو میرے ذہن میں ایک ہی بات آتی، ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے جیسے وہ کہتے رہتے ہیں خدا ابراہیم دی گود چ جائے گا، ابراہیم دی گود چ جائے گا، ابراہیم دی گود چ جائے گا۔ پتہ ہے نہیں کہ جائے گا کہ نہیں جائے گا۔ ابراہیم کی گود اتنی بڑی بھی نہیں ہے اور فارغ بھی نہیں ہے کہ جس میں سب کو بھیج دیا جائے اور ہمارے کہنے سے وہ چلا جائے بندہ۔ اگر آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، جو میں سنانا اور سکھانا چاہ رہا ہوں، آج جو میرے کلام میں جو فوکس ہوگا جھوٹے نبی اور جھوٹے مسیح، جن کو میں ٹچ کروں گا، جن کو میں بیان کروں گا، اور خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے فریب نہ کھانا۔ جھوٹے استاد اٹھ کھڑے ہوں گے، لیکن وہ کیا کہیں گے؟ چلو طوطے نے تو کہا پاکستان جیتے گا، نجومی نے کہا پاکستان جیتے گا، کہہ رہے ہم ٹھیک کہہ رہے، تو پتہ تو اسی دن چلے گا جب وہ آئے گا اور جب اٹھائے جائیں گے۔ تو آج ہم نے ہوشیار کن سے رہنا ہے؟ چرچ نے جھوٹے نبیوں اور جھوٹے استادوں سے کیوں؟ اب ہم ورلڈ کپ سے فارغ ہو چکے، جس کا تھا اس کو مل گیا، جس نے پانا تھا اس نے پا لیا، جس نے لینا تھا اس نے لے لیا، لیکن جنہوں نے دعوے کیے وہ آپ کیا کرتے پھرتے ہیں؟ ندامت، شرمندگی، منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ اور پھر کچھ جشن کا سما بھی ایسا تھا، شاید کریٹ کے کریٹ جو کھلنے والے تھے کسی بھی چیز کے، چاہے وہ کولڈ ڈرنک کے تھے چاہے کسی اور ڈرنک کے تھے، رہ گئے، مٹھائیوں کے ڈبے رہ گئے، سب کچھ رہ گیا، کیونکہ دعویٰ پورا نہ ہوا۔ اس لیے چرچ کو، کلیسیا کو بھی ایک ایسے دعوے سے بچنا ہے جس میں اخیر زمانہ میں چرچ میں جھوٹے نبی، جھوٹے استاد کھڑے ہوں گے، اور وہ کیا کہیں گے؟ آج کا مضمون ہے یسوع کہاں ہے۔ آج کا جو مضمون ہے وہ کیا ہے؟ یسوع کہاں ہے۔ اور غور سے سنیے گا، جیسے طوطے کہتے رہے، جیسے نجومی کہتے رہے، جیسے بڑے دعوے کرنے والے کہتے رہے، آج چرچ کی کنڈیشن بھی کچھ ایسے ہی ہے۔ سمجھ لیں کہ آپ سیمی فائنل سے فائنل کی طرف جا رہے ہیں۔ سیمی فائنل ہو رہا ہے، فائنل کیا ہے؟ ہوا میں اڑ کر جانا۔ دیکھ لو، سیمی فائنل میں سے نکلو گے تو پھر فائنل میں جاؤ گے، میرے نال ہوگے تو پھر فائنل سے جاؤ گے، پھر جیتو گے بھی۔ ہاللیلویہ۔ آئیں، کلام مقدس نیو ٹیسٹامنٹ، نئے عہد نامے کا پہلا کویسچن کبھی آپ نے غور کیا ہے یا نہیں کیا؟ آپ نے کبھی نئے عہد نامہ کو غور سے پڑھا یا نہیں پڑھا؟ یا سرسری پڑھتے ہیں جی؟ اس کا پہلا سوال، نئے عہد نامہ کی پہلی کتاب متی رسول کے انجیل کا پہلا سوال، متی 2 باب 2 آیت 22 آیت میں لکھا ہے، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا وہ کہاں ہے؟ یہ پہلا کویسچن
तलाश से होता है। गौर कीजिए, स्टार्ट ही में क्वेश्चन हमें बता रहा है लोग किसको तलाश कर रहे हैं? मसीह को, यीशु को। कहां है यीशु? कहां है? जिसमें अहम तरीन सवाल वो कहां है? वो कहां है? किसकी तरफ इशारा? यीशु की तरफ। इसके मजमून है यीशु कहां है। यही वजह है कि यीशु ने इस सवाल की वजह से, अब मैं वजह बता रहा हूं, इस सवाल से यीशु ने इस सवाल को मद्देनजर रखते हुए अपने शिगिर्दों को आखिर जमाना यानी तारीख के उस दौर को जिसको मुसीबत का दौर कहा जाता है, एंड टाइम। एंड टाइम और है, रैप्चर और है। मैंने बहुत से कलाम दे दिए, अगर आपको पता है, आपके दिल में आ चुका है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि एंड टाइम स्टार्ट हो चुका है, आगाज हो गया। अभी यूनान में जलजला आया जुमे को 6.5, पाकिस्तान में उसी वक्त 5.2। बड़े बड़े जलजले आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं, जंगें हो रही हैं, मिडिल ईस्ट में हो रही हैं, और बहुत से कुछ ऐसा हो रहा है, कौम पे कौम, सल्तनत पे सल्तनत चढ़ाई कर रही है, कहत हो रहा है, कहत। और कैसा हो, पेट्रोल पंप गिरता है तो कहत ही बढ़ रहा है, और क्या हो रहा है? फाका कशी आ रही है, और क्या हो रहा है? तो सुनिए, खुदा यीशु मसीह ने पहले से दौरे मुसीबत के मुतालिक अहम मालूमात के तलक से अपने शिगिर्दों को बताया। एक ऐसा वक्त आ रहा है जब लोग पूछेंगे मसीह कहां है, यानी यीशु कहां है। और उस वक्त कलाम मुकद्दस में लिखा गया है, मत्ती की इंजील के बाब में, कि उस वक्त कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहां है या वहां है, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे, ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर देंगे। देखो, मैंने पहले ही तुमसे कह दिया, बस अगर वो तुमसे कहें कि देखो वो बियाबान में है तो बाहर ना जाना, देखो वो कोठरियों में है तो यकीन ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से पश्चिम से कूद कर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कूद कर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। लेकिन आगे क्या है? जहां मुर्दार हैं वहां गिद्ध जमा हो जाएंगे। ये आदम सीखे, जहां मुर्दार है वहां गिद्ध जमा हो जाएंगे। आमीन। ये थी वर्ड्स। अब ये पुरफरेब सवाल होगा, एंड पे एक बड़ा ही फरेबदेह सवाल होगा, जिसका भी मैंने कुछ वर्ल्ड कप के तरीके से आपको बताया कि पूछा जाएगा। सवाल किया जाए कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा। तो ये पुरफरेब सवाल हैं जिनके जवाब देने वाले उठ खड़े होंगे, तो बड़े दावे से कहेंगे। तो ये क्वेश्चन जिसके लिए हमें खबरदार रहने की जरूरत है कि मसीह कहां है। यीशु की गुफ्तगू का आगाज इन अल्फाज से होता है। अब गौर कीजिए, जब यीशु अपने शिगिर्दों से बात कर रहा है, वो कह रहा है उस वक्त, खुदा वक्त की तरफ इशारा, उस वक्त, ये बड़ी मुसीबत के दौर की तरफ इशारा। खुदावंद का इशारा दूर की तरफ है, मुसीबत के दौर की तरफ है, मुखालिफ मसीह के दौर की तरफ है। जब एंटी क्राइस्ट आएगा उस तरफ इशारा है। खुदा ने मुख्तर मगर इंतहाई इंतबाह के अंदाज में फरमाया। मत्ती की इंजील उसके 24 बाब की 22वीं आयत में, अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगजीदों की खातिर वो घटाए जाएंगे।
इसी बात को दानियल की नबूवत के 70 हफ्तों के आखिरी 3.5 साल कहा गया। ये जो मुसीबत के दिन हैं, जो दानियल के 70 हफ्ते हैं, उनमें इन्हें किस इशारे से बताया गया? आखिरी 3.5 साल। और इस अजार सानी और अदालत के हौलनाक दौर के दौरान वक्तन फक्तन यीशु मसीह मुख्तलिफ मकामात पर ज़ाहिर होकर अपने लोगों की मदद करेगा और उन्हें सहारा देगा। ऐसे में जब मुसीबत के अय्याम आएंगे, खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों पर ज़ाहिर भी होगा, उनकी मदद भी करेगा और उन्हें क्या देगा? सहारा देगा। और ये ज़हूर 1,44,000 यहूदी मसीहों पर उनकी आलमगीर खिदमत के लिए होगा। पहले भी बता चुका हूं, गुज़श्ता इस्तवार, उससे पहले भी 1,44,000 यहूदी मसीहों के बारे में एक मरतबा फिर बता रहा हूं कि यीशु किनकी मदद को आएगा? 1,44,000 यहूदी मसीहों के लिए। शायद गैर अक़वाम के ईमानदार भी उसमें हो, उनकी उसे बड़ी भीड़ के लिए भी, जो उस बड़ी मुसीबत से निकल कर है, ऐन मुमकिन है। ना सिर्फ यहूदियों के लिए बल्कि गैर अक़वाम में से भी कुछ अभी हैं जो खामोश मसीही हैं, जो पोशीदा मसीही हैं, उनके लिए भी खुदावंद उन पर अपने आप को क्या करेगा? ज़ाहिर भी करेगा और उनकी मदद भी करेगा और सहारा देगा। यीशु मसीह के इस तरह होने के नतीजे में जब वो ऐसा कर रहा होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा? अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल जाएंगी। अफवाहें उठ खड़ी होंगी और वो अफवाहें कैसे फैलेंगी? जैसे जंगल में क्या फैलती है? आग। देखो वो यहां है। कुछ लोग कहेंगे यहां, अभी तो हमने उसे देखा है, अभी हमसे मिला है, अभी हमें जाहिर हुआ है। यानी हर जगह कोई ना कोई उसको देखेगा और उसका ज़हूर होगा और उनसे वो मिलेगा। लेकिन यीशु ने पहले ही पेशन गोई कर दी, खुदा ने पेशन गोई कर दी कि ऐसी सूरत हाल उसके जी उठने के 40 दिन के दौरान पेश आएगी। पहले खुदा ने किस तरफ इशारा किया था? जब वो मुर्दों में से जी उठेगा तो 40 दिन ऐसा ही होगा